How to grow or manage your portfolio? What is the right strategy to manage your portfolio? So should you invest directly in stock market or mutual fund? Or should you invest in gold, FD, PPF, real estate, bonds? Where to invest? So should you invest in market when market is at all-time high and in uptrend, or you should invest when market falls, when market corrects? Should be the right strategy to manage your investments, manage your portfolio? So we'll be answering all these questions in this video. Hello, this is Ashish Parak. Welcome to our channel Finspiration, where we talk about money management and investing in layman's language. So what is investing? Investing is not a science. There is no fixed formula to it. It is more an art where you need to have right strategy as per your risk appetite, and you should have right mindset. There is no one size fits all strategy, right? कुछ लोगों को कम रिस्क लेना पसंद है, कुछ लोग हाई रिस्क लेके इन्वेस्ट करते हैं, राइट? ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट and your financial goals. So first, risk appetite. It's all about your risk taking capacity, your age, obligations, your income, your capital, right? And second, financial goals. So financial goals is the first step before you start investing. You should know your financial goals. So it depends on two factors basically. First, amount you need, and second, time period after which you need that amount. So ये दो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करने में. So if we talk about personal finance basic steps, so let's talk about that. First step is earning that we all do, right? There's no problem in earning, right? We consider that. Second, savings. So savings again we all do. In India, generally public save money, not invest money, right? So saving in saving bank account, in FD. Why I say FD about saving? Because it is giving only 4 to 5%, right? And saving bank account only 3% in current scenario. So ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रही. जो महंगाई हर ईयर जो हमारे बढ़ रही है उसको भी बीट नहीं कर पा रही. इट मीन्स आपका वेल्थ लॉस हो रहा है, राइट? सो थर्ड स्टेप इज इन्वेस्टिंग. So if we talk about investing, generally people are scared of investing. I don't know why. If you are young, you should take risk. You should take calculative risk, right? That your financial goals की इतने टाइम बाद आपके financial goals है तो आपके पास लंबा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए. And even if you 40, 50s, you should invest for 10 years, 15 years. You can invest, right? So you should invest directly in stock market or mutual fund and any route. You should consider investing is your first option, not last option. So generally people wait for long time and then start investing. So I must talk that investing is all about time. It's not about amount to invest. Always time is more important than the amount to invest, right? If you invest for long term, even a small amount, it compounds. So compounding के ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ. So compounding कैसे आपके wealth को grow करता है and कितना important element है compounding investing का, वो सब आपको उस वीडियो में जानने को मिलेगा. तो सब्सक्राइब नाउ. मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, जिससे आपको और इंपॉर्टेंट वीडियोस इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस के बारे में अपडेट्स मिलती रहे. लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग एंड सेविंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड सेविंग? एक एग्जांपल के साथ डिस्क्राइब करता हूं मैं आपको. एक आपने सेविंग की है, सेविंग बैंक अकाउंट या एफडी में 4% रिटर्न मिल रहा है, जिसमें उसको डबल होने में 18 ईयर्स लगेंगे, राइट? एंड आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है किसी लाइक स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड कंपाउंडिंग, वो एवरी ईयर 18% रिटर्न दे रहा है. एंड अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हो 18% इज नॉट वेरी हाई रिटर्न इन स्टॉक मार्केट और इन म्यूचुअल फंड्स. सो 18% अगर रिटर्न देता है तो उसको सिर्फ 4 साल लगते हैं डबल होने में. सो इतना डिफरेंस है इन्वेस्टिंग एंड सेविंग में. सो you should always consider investing as a first step. Start as soon as possible, right? So if I talk about my portfolio strategy, how I build my portfolio, वो भी मैं आगे बात करूंगा. So उससे पहले मैं कुछ इन्वेस्टिंग टिप्स देना चाहता हूँ आपको कि always learn before you start investing. At least do basic research. Risk comes from not knowing what you are doing, right? So हमेशा आप लर्न करें ऐसी वीडियोस से,
रीड करे, बेसिक रिसर्च करे कंपनी के बारे में एंड देन इन्वेस्ट। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर आप बेसिक रिसर्च करते हैं किसी स्टॉक के बारे में तो ऑलवेज चेक 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, लाइक वो बिजनेस ग्रोइंग होना चाहिए, इसका जो मैनेजमेंट है वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, उनका प्लान्स हो कि हमें बिजनेस ग्रो करना है, उनके बड़े प्लान्स हो, विजन हो उनका। सो फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड हेल्दी फाइनेंशियल्स, देखिए कि उनका बहुत ज्यादा डेट नहीं लिया हुआ हो, राइट? बहुत ज्यादा डेट होगा तो वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, एंड उनके डिफॉल्ट्स कम हो, राइट? थर्ड, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कंपनी है उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने चाहिए कि एटलीस्ट उनके एक एडवांटेज हो कि वो ग्रो कर पाए। लाइक नेस्ले, उसमें मैगी इज अ प्रोडक्ट जिसको अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया। सो ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होने चाहिए जिनमें जो यूनिक हो, राइट? एंड जिनमें एक एडवांटेज हो कंपटीशन का कि वो कंपटीशन उनको बीट नहीं कर पाए। सो ये 3 फैक्टर्स आप हमेशा ध्यान रखना कोई भी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए। तो ये बेसिक रिसर्च आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, यू शुड नेवर फॉल प्रे टू फियर, ग्रीड एंड होप, दीज 3 थिंग्स, राइट? FGH, ये याद रखना। स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म टिल योर फाइनेंशियल गोल्स अचीव, राइट? सो फियर, ग्रीड एंड होप, इसके चक्कर में मत पड़िए। मार्केट अप डाउन होते रहेंगे, लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट्स, इकोनॉमी हमेशा ग्रो होगी और आपका फंड, आपका वेल्थ भी ग्रो होगा, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप, ऑलवेज आई से टाइम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन amount of investment. So longer the money stay invested, it compounds more. So compounding effect आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कीजिए। So ये कुछ टिप्स है इन्वेस्टिंग की। स्टॉक टिप्स नहीं दे रहा मैं, इन्वेस्टिंग की टिप्स दे रहा हूँ, राइट? सो अब मैं अपना पोर्टफोलियो बताता हूँ। तो हाउ आई बिल्ड एंड मैनेज माई पोर्टफोलियो। तो मेरे एक्चुअली 2 बकेट्स हैं, इक्विटी एंड डेट। इनमें मेरा एसेट एलोकेशन रहता है। सो अप्रॉक्स 50-50% इक्विटी में रहता है एंड डेट में रहता है। इफ आई टॉक अबाउट इक्विटी फर्स्ट, इक्विटी में मेरा 70% जो है फंड वो मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। एज आई हैव गुड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन स्टॉक मार्केट, तो मैं 70% इक्विटी में रहता है डायरेक्ट स्टॉक्स में, एंड 30% मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा रूट करता हूँ, राइट? सो 70% जो इक्विटी में उसमें 50% मेरा कोर पोर्टफोलियो है एंड 50% सैटेलाइट पोर्टफोलियो। आई एक्सप्लेन दिस दैट 70% में से 50% कोर पोर्टफोलियो जो कि बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स में है, लाइक HDFC बैंक, राइट? जो मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए है स्टॉक्स। मैं रेगुलर चेक नहीं करता कि उसमें कितना अप डाउन हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, बट आई अवॉइड सिचुएशंस लाइक येस बैंक। सो आई कीप एन आई ऑन माय पोर्टफोलियो कि येस बैंक जैसी सिचुएशन ना हो, राइट? सो बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं। एंड नेक्स्ट 50% मेरा जो रहता है वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है, लाइक जो सबसे ट्रेंडिंग सेक्टर्स है, अभी हॉट सेक्टर्स है जिसमें मोमेंटम अच्छा है, उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूं, राइट? सो दैट्स काइंड ऑफ स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग आई डू। सो 50-50% मेरा एलोकेशन हुआ है इक्विटी में। सो ये एक इक्विटी का स्ट्रेटेजी है मेरा। फिर बाकी का 50% मेरा जो डेट में है, उसमें मैं इसलिए 50% डेट में है अराउंड क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है और मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट इक्विटी में इस टाइम नहीं करूँ, थोड़ा करेक्ट हो, थोड़ा अच्छी वैल्यूएशन मिले देन इन्वेस्ट करूँ। सो अभी मेरा लिक्विड फंड में है काफ़ी पैसा एंड बैंकिंग एंड PSU डेट फंड में। सो आई मेक श्योर दैट मेरा डेट फंड जो हो वो AAA रेटेड हो, AAA रेटेड पेपर्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हो, जो बेस्ट क्वालिटी डेट फंड हो उसी में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज रिस्क लेने के लिए तो इक्विटी है। सो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क इन डेट, राइट? सो मेरा लिक्विड फंड में पैसा रहता है जो, एंड कुछ पैसा लिक्विड फंड में उसके लिए है कि मार्केट करेक्ट होगा, इक्विटी मार्केट, सो उस टाइम मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देन आई इन्वेस्ट इन इक्विटी इन स्टैगर्ड वे, राइट? सो लिक्विड फंड में जनरली मेरा पैसे का रहने का पर्पस ये है, एंड फिर बाकी का बैंकिंग एंड PSU फंड में मेरा कुछ पैसा जाता है इन थ्रू SIP रूट। सो ये मेरा डेट एंड इक्विटी एलोकेशन है, अप्रॉक्स 50-50 है आज के सिनेरियो में। आई मस्ट से दैट डाइवर्सिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इन्वेस्टिंग, कि आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड हो, आपका एक ही स्टॉक में या एक ही सेक्टर में पूरा पैसा नहीं लगा हुआ हो। यू शुड हैव मिनिमम 10 स्टॉक्स, 10 डिफरेंट स्टॉक्स इन डिफरेंट 5 सेक्टर्स। लाइक आपका अगर पोर्टफोलियो अगर मार्केट डाउन भी आता है तो आपके हर सेक्टर में जरूरी नहीं कि बराबर डाउनफॉल हो, राइट? सो किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। कोई कंजर्वेटिव सेक्टर्स होते हैं लाइक FMCG, IT सेक्टर, तो उसमें भी होना चाहिए, एंड लाइक हाई रिस्क सेक्टर्स में हो, लाइक साइक्लिकल आपके जो सेक्टर्स होते हैं, मेटल्स अभी जो हाई रिस्क कह सकते हैं क्योंकि उसमें काफी अप डाउन्स आ रहे हैं, लाइक आपका बैंकिंग सेक्टर भी काफी रिस्की है आज की डेट में। सो ओवरऑल आपको रिस्क बैलेंस करना चाहिए। सो आपका ओवरऑल 5 सेक्टर्स में मिनिमम डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए एंड 10 स्टॉक्स में। सो आई मेक श्योर दैट
मेक अ फाइन बैलेंस बिटवीन all the stocks and sectors, right? So आपका diversification बहुत important है. And then if we talk about other investment, that is gold और PPF. So अगर मैं बात करूँ तो PPF में मेरा ऐसा कोई investment है नहीं, because I invest in debt funds so and equity market. So PPF भी ultimately वो finally stock market और debt market में invest करते हैं. So PPF में मैं invest नहीं है. Gold if I talk about, अभी मेरा कोई investment नहीं है gold में, बस ज्वेलरी है, that I don't consider as investment. सो गोल्ड में अगर बात करें तो 4 to 5% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट का अपोजिट चलता है गोल्ड. इफ स्टॉक मार्केट फॉल्स, ऑल मार्केट फॉल्स, ग्लोबल मार्केट फॉल्स, गोल्ड राइजेस, बिकॉज इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है गोल्ड एंड स्टॉक मार्केट में. सो कुछ हेज करने के पर्पज से गोल्ड में 4 to 5% एलोकेशन होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट का, जो कि मैं फ्यूचर में कंसिडर करूंगा, राइट? सो दिस इज माई पोर्टफोलियो एंड हाउ आई मैनेज. सो मेरा मेजरली एसेट एलोकेशन इक्विटी एंड डेट में है, नॉट अदर देन दैट. सो फ्यूचर में मैं गोल्ड में कंसिडर कर सकता हूँ एंड रियल एस्टेट में भी. सो ये मेरे पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी है. एंड एज पर मार्केट्स अगर बहुत करेक्ट होता है, अच्छे वैल्यूएशंस में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं लिक्विड फंड से मैं सिस्टमेटिकली ट्रांसफर करता हूँ. सो ऑलवेज रिमेंबर डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. इन्वेस्ट एज पर योर फाइनेंशियल गोल्स, as per your risk appetite. Always consider these things before start investing, right? And last tip, always invest in learning, in gaining knowledge, because it pays the best interest. So subscribe and like this video अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी वैल्यू आपको मिला है इस वीडियो से, and if you like anything about this video, so मिलते हैं अगले वीडियो में. कोई भी आप वीडियो चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, ओवरऑल स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी आप टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट मी डाउन किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, राइट? आशीष पारक, इंस्पिरेशन. थैंक यू. हैव अ गुड डे.